Creative Stuff Media presents Tom Talk on Mic Season 1. तो आज हम लोग मॉडलिंग के बारे में जानने वाले हैं और उसी के लिए हमारे साथ है गंधाली चौधरी उर्फ जीसी, सब Hi, इंडस्ट्री everyone. में जीसी बुलाते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो पर Thank जिसका you for नाम है calling टॉम me. यानी टॉक ऑन Yes. माइक। तो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस पॉडकास्ट के एंड में गेम खेलेंगे। इसका नाम Okay. है मिथ एंड फैक्ट। Okay. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको बताना है कि वो पर्टिकुलर चीज़ मिथ है या फैक्ट है। All right. तो मेरा एक हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि ये मॉडलिंग और फैशन मॉडलिंग के बीच में क्या दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? So modeling and fashion modeling I would say modeling would be a lot of things. You model for a lot of products, right? And the fashion modeling is basically a lot of commercial modeling where there is a lot of fashion involved. Like you shoot for Clothes and all. magazines. Yes, Okay. shoot for magazines. There are a lot of creative stuff happening in it. Like you are, the poses are also different. Like, fashion is something that represents you as a person, right? So it differs. So both of them are different sectors. In modeling, like I would say, I shoot for a lot of brands. So that would be, there are a lot of footwear, jewelry, all of that. But then the fashion modeling would be like I'm shooting for a Vogue. So they have a very creative concept. हाँ. And it might be really high fashion shoot. Could be a particular thing. So I would say that is that. एक टॉपिक लेकर वो शूट करते हैं उसके बाद। तो अच्छा, तो फिर और ये एक सिली क्यूरियोसिटी बोल सकते हैं इसे कि ये जो मॉडलिंग करते हैं बेसिकली फोटो शूट हो या जो रैंप वॉक करते हैं, तो उसमें सीरियस फेस ही क्यों रखते हैं? मतलब जब भी देखो तो सीरियस फेस ही रहते, तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके कि वो पीछे प्रोडक्ट पे ध्यान जाना चाहिए exactly, इसलिए exactly. अच्छा। So I would say that if I'm doing ramp for a particular brand, then I'm not that important, right? The वो clothes clothes are important important. If it's for a bag brand, then the bag is important, right? So the expressionless thing is for that it doesn't focus on me, and it's more focused on the garment. अच्छा, So that's why we are always expressionless. मतलब अगर एक्सप्रेशन लेस होके भी इतना अच्छा लग रहा है तो एक्सप्रेशन होंगे तो कितना अच्छा लगेगा, ऐसे ये टाइप Some brands, like we do, like there is Bombay Times, there is Lakme, we do a lot of Indian wear. So then that time they ask us to interact with audience. Sometimes we are dancing also. Nowadays we are dancing, we are smiling. So it depends upon brand to brand also. So I did this show in Lakme for a Russian brand called Misha Gol. अच्छा For them, for that they have asked us to keep a poker face. They don't want an expression. ऐसे बताते हैं कि Yeah. आज हंसना है या आज Yeah. हंसना नहीं है नहीं, करके। हाँ. अच्छा, तो फिर अगर वो तो ब्रांड का हो गया, तो अगर आप जो क्लोथ्स पहनते हो तो जो डिज़ाइनर रहता है तो वो आपको देता है कि ये आप पहनोगे, वो दूसरी मॉडल दूसरा पहनेगी। Yeah. तो आपको ऐसे नहीं लगा कि नहीं वो अच्छा, वो मेरे पे सूट ज़्यादा होगा? तो ऐसा कभी हुआ नहीं? ऐसा हुआ है बहुत बार, like लेकिन आप बताते हो वो नहीं, डिज़ाइनर we can't tell them, right? So ऐसे when they present a collection to us, and sometimes you feel like, oh, this dress is calling it to me, right? I like this dress, it should go to me. But then sometimes it depends upon stylist also, what the stylist feel would suit better on you. So then it's stylist, the designer, a lot of other people, choreographer, so they decide what goes to whom. तो ये जो शो होता है उसके पहले कितने दिन का रिहर्सल्स वगैरह होता है? अभी तो आप तो इतने साल से हो तो आपको तो आता ही है, लेकिन कभी कभी कैसे होता है ना कि हम एक ही दिन में रिहर्सल्स और शो दोनों एक साथ करते हैं, कि सुबह रिहर्सल्स होता है, अच्छा फिर दोपहर को टेक रिहर्सल्स होता है विद म्यूजिक Lights लाइट्स, and- एंड देन रात को शो होता है. तो टेक रिहर्सल्स में विद कॉस्ट्यूम्स या नहीं, कभी कभी दे मेक अस वेयर, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारा गारमेंट बहुत बड़ा है, क्योंकि कभी तुम्हें देखते नहीं हैं वो पता गिर है जाते कि हैं और कैसे कर सकोगे. समटाइम्स कोरियोग्राफर्स आस्क कि तुम गारमेंट पहन के चल के देख लो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बोलते. तो एक्चुअली वो आपने शोकेस किया उस डिज़ाइनर ने पर्टिकुलर उनका कलेक्शन,
तो फिर उसका क्या करते हैं? मतलब वो बेचने के लिए होता है, बराबर? राइट। तो अगर आपने वो पहना है तो आपकी फिट अलग है, हाँ। लेकिन अगर वो कोई और पहनेगा तो उसकी फिट अलग होगी, तो Right. उसके लिए अलग बनाते हैं या वही उसको कुछ जुगाड़ करके? इट्स सो क्लोथ्स आते हैं ना जैसे शो के लिए या फिर शूट के लिए, तो मुझे ना कई बहुत बार ट्रायल्स के लिए बुलाते हैं। अच्छा। ठीक है, वो ट्रायल्स कराते हैं कि ये मेरे पे कैसे फिट हो रहा है, हम्म। तो मेरे हिसाब से वो फिटिंग्स कराएंगे वो ड्रेस का। फिर हम उसका शूट करेंगे या फिर रनवे होगा तो रनवे के लिए भी फिटिंग्स कराते हैं। तो उसके बाद व्हाट दे डू इज देयर हाँ, प्रॉब्लम, बराबर। दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, बराबर। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ देम दे मेक अ न्यू गारमेंट और वो उनके कलेक्शन में दिखाने के लिए दे यूज इट। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपको ट्रायल के लिए बुलाया लेकिन फिर ऐसा हुआ कि नहीं, ये नहीं सूट कर रहा है, हम लोग दूसरा ट्राई करते हैं, ऐसे एंड मौके पर? मेरे साथ अभी लाइक लास्ट ईयर आई वेंट फॉर ट्रायल्स फॉर अ ब्रांड, आई विल नॉट टेक अ हाँ, नेम, नहीं चलेंगे। but they wanted somebody who will fit in large or XL. अच्छा। But me being XS, they've called me for trials, अच्छा। and then the garments didn't fit me, so they had to cancel the shoot and hire some other model instead of ऐसा भी me. होता है। तो अभी हम जैसे फैशन मॉडलिंग के बारे में, मतलब मॉडलिंग के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं, तो आपके जर्नी के बारे में जानना है कि आपको फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया इस फील्ड में, क्योंकि आपको कितने साल हुए इस इंडस्ट्री में? Almost 7 years now. 7 ईयर्स। तो Yes. तब तो इतना, अभी तो सोशल मीडिया बहुत हाइप है इसलिए बहुत से लोग जा रहे हैं, लेकिन तब तो इतना नहीं हाइप था। नहीं तो आपका मतलब फैमिली सपोर्ट कैसे था? फैमिली सपोर्ट मतलब मैंने चालू ऐसे किया कि कॉलेज आई वाज डूइंग टेक्सटाइल। अच्छा। हाँ, तो वी हैड इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स एंड इन दैट वी हैड फैशन शोज फॉर ईच कॉलेज हु वर पार्टिसिपेटिंग। अच्छा। ठीक है, तो हमारे इधर ना कोरियोग्राफर्स आते थे कॉलेज में, स्पेशली बुलाते थे कि वो सेट करके देंगे कोरियोग्राफी एंड एवरीथिंग, और गारमेंट्स हम खुद बनाते थे। लाइक मेरा गारमेंट मैं खुद बनाऊंगी, नाम मैं खुद पहनूंगी और मैं खुद ही चलूंगी वैसा। तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया कि, एंड देन टीचर्स भी, मतलब हमारे प्रोफेसर्स भी बहुत इंकरेज करते थे, गंधाली यू शुड डू दिस, गंधाली यू शुड डू दिस, योर वर्क इज सो गुड एंड दैट। एंड देन द कोरियोग्राफर आई मेट हिम नाउ, अच्छा। yeah, जो so तब, the guy I've choreographed for me हाँ when I was in college, in college, he's a big director now. अच्छा। Like he's a big show director. So that was also when I met him recently. So I was also happy to meet him because then it's 7 years that I'm seeing him after, and he's तो grown so उन्होंने आपको much. पहचाना? Yeah, he did. अच्छा। Uh, yeah, so I started then, but then like that. So family से इतना support नहीं था because being Maharashtrian, you know, we have concepts that, you know, modeling and all of this is not good Doctor, for. engineer, Yeah. And my whole family is majorly doctors and engineers. So then everybody was expecting, my mother is a doctor, so she was expecting I should become a doctor at least, बराबर। right? And I have been always a creative kid. आपने टेक्सटाइल कहाँ से किया? जेजे से? I did it from SNDT. SNDT। अच्छा, सॉरी आपको बीच में काट दिया। नहीं, कोई बात नहीं। तो देन उसके बाद आफ्टर कॉलेज ना, वन ऑफ माई फ्रेंड हैड अ फ्रेंड हु वाज डिजाइनर. हाँ। She wanted to do a shoot for a brand, but then she asked us कि would you guys be interested doing this for me? And that time I was into styling. After college I was into styling. So then we were also we also had a YouTube channel for styling. अच्छा, मतलब आप किसी मॉडल पे स्टाइलिंग वो करते थे? No, we used to do it on clothes, ourselves. अच्छा। Me and my friend, we used to do it together. We had started a YouTube channel then, and then we used to do styling. So then she has approached us, anyways, you guys are vlogging about it, so can we do this as a collab? And then I've done the shoot for her. And then I randomly posted pictures on Instagram. Instagram was new then. So I वो got ब्राउन वाला लोगो? Yeah. Yeah. So then I got scouted from an agency. They found my pictures and they called me for a meeting. So then I went with my uncle
and went for a meeting. They liked me. They said, would you be interested in signing up with us? I took like a week to revert them back. Had to consult with my family and बराबर. all of that. My mama said that, if you want to try it, you कर see. सकते हो, हाँ. You see. If you feel like you really want to do it, go ahead. And she's been really supportive over the period of time. Like, if she wasn't there, I don't think so I would have been able to do this. Like, she's still there. Like, I come so late at night sometimes. She comes and picked me up from the station. She is still like standing so strong behind me that I could do this. And I'm still doing it. I'm still achieving a lot of goals in my life. And I look forward to modeling as a career and to grow in it. I don't think so if she was not there, I wouldn't be able to do this. बिकॉज बाकी जो भी लोग हैं ना फैमिली में, वो सब इतना सपोर्टिव नहीं है. अच्छा, क्योंकि ये इंडस्ट्री कैसी और क्या होता है एक्टिंग में भी मीडिया वैसे ही है. और जो भी टीवी पे दिखाते हैं, दे ओनली नो दैट. मतलब जो रियल लाइफ में पहले शायद होता रहेगा, बट अभी इतना सब चेंज आ गया है, सब एजुकेटेड है, और वी नो व्हाट इज राइट फॉर यू, नो व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू. तो इफ़ यू चूज अ राइट पाथ, देन आई डोंट थिंक सो एनीथिंग रॉन्ग कैन हैपन विद. मतलब मेरे साथ तो अभी तक कुछ ऐसा रॉन्ग चीज़ हुआ नहीं है. आई एम हियर सिंस 7 years. तो देन आई थिंक इट्स अप टू यू हाउ व्हाट यू चूज, राइट. एंड देन क्योंकि जल्दी फेमस होने के लिए फिर कुछ चीज़ें ऐसे है कि लोग करते हैं और फिर उन्हें ब्लेम करते हैं. हाँ. तो आप वैसे ना करो, मतलब जल्दी फेम पाने के लिए. हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि if you do good, you are good to people, everything is good to you, everybody is good to you, तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होता है. तो I have been शॉर्टकट ना चुनो. हाँ, शॉर्टकट क्यों चुनना है? और फिर मतलब बहुत लोगों के साथ ट्रेजेडीज होते हैं, कुछ होता है, बट देन आप नहीं करोगे तो नहीं होगा ना आपके साथ. जैसे कि फैशन फिल्म है तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें दिखाई है. इसी वजह से भी लोग का एक माइंडसेट बनता है कि यार ये इंडस्ट्री ऐसी है. तो आप ही बता सकते हो कि जो उस इंडस्ट्री में, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो ही बता सकता है कि अंदर एक्चुअल में क्या होता है. तो वही है, मतलब आपने जैसे बताया कि अच्छे लोग भी है इंडस्ट्री में. बहुत सारे अच्छे लोग हैं. लाइक मुझे तो कोई ऐसा बुरा मिला ही नहीं है. और मुझे लगता है आप सबके साथ अच्छे हो, आपके साथ सब अच्छे हैं. तो और ऐसा कोई उतना बुरा साइड भी नहीं है इंडस्ट्री. लेकिन जलने वाले भी होते हैं कि अरे इतना पोजीशन हो गया तो अभी खींचो इसको नीचे, तो वो भी होता है. मुझे लगता है सब अपने विल पावर पे होता है. यू आर इमोशनली स्ट्रांग. आई एम वेरी स्पिरिचुअल, सो आई बिलीव इन गॉड अ लॉट. ये अच्छा है. हाँ, तो मुझे नहीं लगता कुछ आप अफेक्ट डिस्ट्रैक्ट करता है नहीं हो आपको. सकते. हाँ. तो आपने जैसे अपनी माँ का बोला कि उन्होंने सपोर्ट किया है, तो आपने कभी उन्हें शो, मतलब जो रैंप वॉक होते, फैशन वीक्स होते, तो उसमें कभी उन्हें लेके गए हो? मैं उसको आना ही नहीं होता है. आई ऑलवेज आस्क्ड हर, आई विल गेट पासेस, come, but she has this thing, she has a clinic, right? She's a doctor, so she's bound to her job more. And then most of the shows happen late at night, so it's difficult for her to come and watch it and go back, but she always watch it online. I always send her a link that open this on Instagram. Live भी जाते हैं. Live, yeah. So sometimes there are shows which are live, so I make sure that she gets to watch it. Or I keep on sending her. I always video call her before the show. I'll show her what I'm wearing, what I'm doing. If I get a chance, then I'll call her after the show also and tell her like it went well, ऐसा हुआ वैसा हुआ. माँ ने आपको कभी ऐसे बोले कि यार नहीं तो अभी ये फील्ड में है तो अच्छा कर रही है, ऐसा कभी उन्होंने बोला या इनडायरेक्टली कभी ऐसा बोला है? She does always tell me she's proud of me. And she likes, like, she'll ask me, please send me a picture from the shoot, and she'll tell her friends also, she'll show it to them. So I think she's proud of it. क्या आपको वो जो कपड़े रहते हैं, तो क्या आपको मिलते हैं? वो कभी मिला है? नहीं, I get paid अच्छा. for the shoots. It's like a job. हाँ. Like how corporate people is. We have a 12-hour shift. अच्छा. Right, so sometimes I have if it's a big मतलब आप campaign. एक एजेंसी के लिए काम करते हो? ऐसा? I'm with agency called Sparkle Talents, right? अच्छा. I'm with them for 4 years now. It's become a family. मतलब आपका भी मैनेजर है करके? हाँ. हाँ, मतलब फिल्म्स की तरह, मतलब जो एक्टर्स है उनके मैनेजर, वैसे ही आपकी टैलेंट एजेंसी है? अच्छा, तो वैसे होता है. हाँ. तो अभी इस फील्ड के जो ये फील्ड आगे जाके जिसको
आना है इस फील्ड में, ये इस इंडस्ट्री में, तो आप उन्हें क्या बताना चाहोगे? मतलब एक इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? ऐसे कोई डिसएडवांटेजेस तो नहीं है. आई टोल्ड यू, हाँ, इफ यू चूज योर राइट हाँ, राइट पाथ, यू आर ऑन अ राइट डिसएडवांटेजेस तो क्या है कि बहुत हेक्टिक होगा, हाँ वो हाँ, डिसएडवांटेज. मतलब डिसएडवांटेजेस वुड बी लाइक कि कभी कभी शूट 12 घंटे में नहीं खत्म होता, बराबर. कभी कभी 16 घंटा भी लगता है. लाइक मैंने अभी टाटा सफारी के लिए टीवीसी शूट किया था, अच्छा. तो मेरा शॉट वाज सपोज टू बी एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून. ठीक है, दे हैव कॉल्ड मी एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, क्योंकि मेरा कॉल टाइम होता हाँ है. मेरा जो को एक्टर था अच्छा. उनके साथ मेरा एक शॉट था जो 3 बजे था. अच्छा. एंड आई ओनली हैड वन शॉट. मतलब सबके अलग अलग शॉट्स होते हैं, तो मेरे टाइम पीरियड के हिसाब से मुझे वो बुलाया. था. हाँ. बट वो दिन इतनी बारिश हो रही थी कि वो आउटडोर शॉट था, वो नहीं हो पाया. तो उन लोगों को पूरा इंडोर सेटअप करना पड़ा. अच्छा. फुल इंडोर सेट बनाया. आउटडोर की तरह. हाँ, आउटडोर की तरह. हाँ. और मेरा शॉट जो 3 बजे होने वाला था वो रात को 1 बजे हुआ है. अच्छा. तो टाइम मतलब ऐसा है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पर्टिकुलर टाइम पे चीज़ें नहीं ख़त्म होती. कभी कभी तो ऐसा होता है कि 12 घंटे का शिफ्ट है लेकिन 6 घंटे में ख़त्म हो गया. तो डिसएडवांटेजेस वुड बी कि टाइम लिमिट नहीं है कभी कभी. हाँ. राइट, तुम अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम 8 बजे घर पहुंच जाओगे तो तो कभी वो कभी नहीं, नहीं 9 हो to 5 सकता. जॉब नहीं है. हाँ बोल हाँ. सकते. और वैसा भी होता है कि कल शूट है तो मैं रात को 9 बजे कॉल आता है कि कल शूट है, End तो time पे. हाँ आपको. अब कोई फैमिली फंक्शन भी नहीं है, हाँ तो किसी वैसे को ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं हम लोग आएंगे करके. हाँ. तो वो एक है डिसएडवांटेजेस. और एडवांटेजेस तो बहुत सारे होंगे. या आई मीन आई लव व्हाट आई डू. हम्म. और एडवांटेज वन, आई गेट टू ट्रैवल अराउंड इंडिया अ लॉट. तो उनका वो खर्चा भी उनका होता है. अच्छा. होटल से लेकर सब स्टे. एवरीथिंग. हाँ, लाइक आई गो कोची, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली. आई कीप ऑन ट्रैवलिंग. इंडिया के बाहर भी होता है. हाँ होता है ना. लाइक तनिष्क का शूट होता है, वो हमेशा मलेशिया में होता है या फिर बैंकॉक में होता है. और लॉट ऑफ बिग ब्रांड्स शूट आउटसाइड, बाली वाली में शूट करते हैं कभी ऐसा. तो ये एडवांटेज है. और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनने मिलते हैं. हाँ मतलब हर बार कुछ अलग होता है. हर बार कोई डिज़ाइनर अलग होता है, उनके ड्रेसेस अलग होते हैं. यू गेट टू लर्न ऑल्सो अ लॉट ऑफ थिंग्स एवरी डे. लाइक मतलब मुझे सोचना है ना अभी इनका गारमेंट कैसा अच्छा दिखेगा स्क्रीन पे, तो आई गेट टू डू अ लॉट ऑफ क्रिएटिव वर्क. सो आई लाइक दैट अबाउट इट. अच्छा. तो मतलब आपने जो बोला कि अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनने मिलते हैं, तो मतलब क्या बोलते आप उस डिज़ाइनर को ऐसे अप्रोच कर सकते हो कि यार नेक्स्ट शूट के लिए भी हम लोग ही आपके साथ रहे, या ऐसा कुछ नहीं होता? मतलब ऐसे बोल सकते हैं, पता नो. मतलब मैंने कभी आज तक किसी को ऐसा बोला नहीं कि वापस अच्छा. शूट करेंगे. अगर उनको आप सच में पसंद आते तो हो, वही आपको उनका काम पसंद आता, मतलब आपका काम उनको पसंद लेकिन आता है. स्टार्टिंग में तो ऐसा करना ही पड़ेगा कॉन्टेक्ट्स बनाने के लिए. हाँ मतलब मॉडलिंग में अगर आना है ना तो नेटवर्किंग इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग. कि तुम्हें नेटवर्क करना है लोगों के साथ, मतलब बॉन्ड्स बना के रखो कि तुम्हें पता है कि इंसान के पास से आपको काम आ सकता है, कि आप उनको अप्रोच कर सकते हो कि कोई वर्क रहेगा तो प्लीज़ बताना. हाँ. तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है. नेटवर्किंग नहीं होगा तो लोगों को भी पता नहीं रहेगा कि आप इंडस्ट्री में हो. तो क्या इंस्टाग्राम से मतलब एक्टिव रहने से भी आपके पास काम आता है, या ऐसा कुछ नहीं होता? है ना? हाँ मतलब पहले अभी मैंने तो स्टार्टेड ना तभी इंस्टाग्राम इतना नहीं था. इम्पोर्टेंस नहीं था. अभी कैसे होता है, कोई कोई क्लाइंट्स होते हैं ना, दे हैव अ रिक्वायरमेंट, फॉलोअर्स ज़्यादा चाहिए. तो मेरे साथ भी होता है क्योंकि ना मैं इतना सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हूँ. मतलब मैं खुद आई रादर कीप माई लाइफ प्राइवेट देन बीइंग ऑन सोशल मीडिया. बट देन अभी वो ऐसा लग रहा है कि आई ऑल्सो हैव टू अप माई गेम. हाँ, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हाथ से चले जाते हैं क्योंकि यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाटएवर. तो आपके जो पेमेंट्स होते हैं वो आपके एक्सपीरियंस पे बढ़ते हैं या ब्रांड्स पे होता है, ये या आपका एक ही मतलब एक ही सैलरी जैसा रहता है? नहीं ऐसा नहीं है. तो इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन ब्रांड्स. हाँ. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस. अच्छा. हाँ.
both हाँ, the starting में तो things नहीं are मिलेगा, हाँ। important. तो मतलब अब I'll say कि पहले मेरा इतना कोई पेमेंट में उतार चढ़ाव नहीं हुआ है since I started. Sometimes I get paid a lot for bigger brands. Like I shot for Taj, so that was a good payment for them from them. And then if I'm shooting a good campaign, it's a good payment. If I'm shooting for a smaller brand, right? So they have a budget issues like with smaller brands, and I am flexible with work. So I just want to be busy. And I like doing modeling, so it doesn't matter what I'm doing as long as I'm enjoying doing that. हाँ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि हम लोग अभी एक मिथ एंड फैक्ट वाला गेम खेलेंगे, तो अभी हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। Okay. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू बी टॉल। You do have to be tall. अच्छा, ये मतलब फैक्ट है। हाँ मतलब अगर आप एक्टिंग में हो ना अच्छा। तो हाइट मैटर नहीं करती है, हम्म। ठीक, पर आप मॉडलिंग में हो ना तो एटलीस्ट मिनिमम हाइट 5'7" चाहिए. अच्छा, हाँ मतलब ये फैक्ट है बोल मतलब सकते। कोई कोई मॉडल्स है जो हाइट में छोटे हैं बट देन उनका ना पर्टिकुलर फेस है कि फेस वैल्यू की हाँ तरह। फेस वैल्यू है, तो बट देन हाइट तो कंपलसरी है. अगर आपको मॉडलिंग में आना है तो हाइट तो है. फॉर बोथ, मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों के। हाँ बॉयज़ का तो आई थिंक Physical 5'10" और 5'11" उतना, और गर्ल्स के लिए 5'7", 5'8" तो कंपलसरी है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मॉडल्स का कोई ऐसा रूटीन होता है, डाइट या ऐसा कुछ सब? होता है बिकॉज दिस इज व्हाट गेट्स सेल, हाँ। राइट, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. फॉर मी आई डू योगा in the morning, then I do a little bit of workout. I follow a particular diet, अच्छा, and जैसे चीट डे भी नहीं होता? चीट डे होता है यार कभी कभी, बिकॉज मेरा कैसा है, मैं 16 आवर्स का फास्ट फॉलो करती हूँ एवरी डे. अच्छा। हाँ तो देन आई कैन डू चीट डेज. हम्म। तो बट देन हाँ मतलब अगर ऐसे पूछ रहे हो कि कोई रूटीन होता है तो हर किसी का अलग अलग रूटीन होता है, बट होता है. और एवरीबडी हैज़ अ पर्टिकुलर डाइट. शुगर नहीं खाते हम लोग, अच्छा, नो शुगर, बिल्कुल भी नहीं? नहीं. कार्ब्स कम खाते हैं, कार्ब इनटेक कम होता है क्योंकि बॉडी में फैट नहीं बढ़ सकता. हाँ, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मेंटेन करके मेंटेन रखना करना होता है. एंड ऑल्सो इट्स हेल्दी. आई फील लाइक इफ यू एन्जॉय, आई एन्जॉय बीइंग हेल्दियर. लाइक मैंने कॉलेज में पार्ट टाइम न्यूट्रिशन सीखा था, अच्छा। तो देन तब से आई हैव दिस कि मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल ही जीना है. हाँ। तो देन मेरा तो वो पहले से ही है, बट देन होता है सबका अलग अलग रूटीन होता है. अच्छा, तो ये जो आपने बोला, तो ये डिसएडवांटेज में आ सकता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिसएडवांटेजेस में कुछ चीज़ें बोले, तो ये डिसएडवांटेज में आ सकता है कि क्योंकि आपको सब चीज़ें खाने नहीं मिलेंगी. हाँ नहीं तो मिलेंगे, हाँ ये भी हो सकता है. हो सकता है. तो ये मतलब फैक्ट ही है, हाँ तो आप रूटीन फॉलो करते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू बी स्किनी. not true. We have a lot of plus size models, medium size models. I am skinny in between. मतलब वो पर्टिकुलर ब्रांड या कॉन्सेप्ट जो होगा उस तरीके से होता है. अच्छा, But then most of the models are skinny. स्किनी, हाँ. तो मतलब myth, मतलब ऐसा इन बिटवीन होगा, मतलब आई विल नॉट से Myth इट्स भी अ है, मिथ fact और भी. फैक्ट, क्योंकि सब कैटेगरी के लोग होते लगते हैं, हैं हाँ. मॉडलिंग में. लाइक मैं पहले से ही स्किनी हूँ, और फिर देन अभी मेरा वो कैटेगरी बना है कि हम XS साइज, तो वही हिसाब से है वर्क, एंड देन आई हैव टू मेंटेन दैट नाउ. सो ठीक है यार, मतलब चलिए, इन चलता बिटवीन है वो दोनों के. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू बी यंग. पार्शली ट्रू है. अच्छा. फैशन इंडस्ट्री में हर किस्म के लोग हैं, हर एज टाइप के लोग हैं, पर क्या होता है ना, फैशन मैगजीन्स है या फिर बिग कमर्शियल्स है जो मार्केटिंग करते हैं, वो ज़्यादा यंग यूथ प्रेफर करते हैं. अच्छा. उन पता नहीं मतलब ऐसा है, ज़्यादा यंग पीपल को फीचर्स करते हैं. बट आप ऐसे देखोगे कि अगर आइरिस एप्पल है, अब आई डोंट नो इफ आई प्रोनाउंस दैट राइट, बट शी इज़ सच अ फैशन आइकॉन एट सच अ एज. शी इज़
शी इज इन बिटवीन her 90s and 100 like इतना है? yeah. So she is at this age she is such a fashion icon. तो ऐसा नहीं है कि ओल्ड पीपल नहीं है इंडस्ट्री में. बहुत सारे मॉडल्स हैं जो इंडिया में इतने बहुत सारे नहीं हैं, बट आउटसाइड अगर आप देखोगे इंटरनेशनल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने एज में दे आर स्टिल डूइंग मॉडलिंग. तो ऐसा मेरे को ऐसा लगता है वो पार्शली ट्रू है. ऐसा कुछ नहीं है कि यंग ही होना चाहिए. आई थिंक अभी चेंज भी हो रहा है बहुत सारा. कैंपेन्स होते हैं कि वो पर्टिकुलर लुक चाहिए रहता है, तो उसके हिसाब से भी लोगों को प्रेफर करते हैं कि ये यंग चाहिए, थोड़ा सा मदरली फिगर चाहिए या फिर ग्रैंड पेरेंट्स वाला फिगर चाहिए. तो वो हो रहा है अभी डेवलप, क्या बोल सकते हैं उसको, चेंज आ रहा है इंडस्ट्री में. हाँ. तो ये मिथ्स एंड फैक्ट दोनों बोल सकते हैं. हाँ. यू नीड प्रोफेशनल फोटोज. वी डू नीड प्रोफेशनल फोटोज. अच्छा. क्योंकि तुम्हारा एक कॉम कार्ड बनता है. ठीक है. सीवी की तरह. हाँ. बोल सकते. ठीक है. उसमें तुम्हारे पिक्चर्स होते हैं. एंड देन इट हैज योर अदर डिटेल्स आल्सो लाइक एज, हाइट एंड वाइटल्स होते हैं. एजेंसी का नाम होता है, वैसा सब होता है. तो देन और तुम्हारा एक पोर्टफोलियो होता है. तो पोर्टफोलियो अगर क्लाइंट को पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसे दिखते हो और आप आपने क्या क्या काम किया है, तो वो कैसे आपको हायर करेंगे. तो पोर्टफोलियो बहुत मैटर करता है कि अभी इवन आई नीड अ न्यू पोर्टफोलियो. तो आपका पोर्टफोलियो हर साल रिन्यू होता है. हाँ. अच्छा. तो आप ये फोटोज यूज कर सकते हो जो आप काम करते हो तब आप क्लिक करते हो तो वो. अच्छा. वो भी ऐड होते पोर्टफोलियो में. तो ये फैक्ट ही है. सॉरी ये हाँ ये फैक्ट ही है. ये फैक्ट ही है कि यू नीड फोटोज. यस, यू डू नीड फोटोज. द एजेंसी विल पे फॉर एवरीथिंग. नॉट ट्रू. अच्छा. एजेंसी manages you. Like they are the soul behind you, right? Like you are the model and they are the managers. behind the camera आपका सब वो काम. हाँ. So वो आपको शूट्स के लिए बुक करते हैं, वो आपका सब मतलब सब कुछ मैनेज करते हैं. बट जो क्लाइंट होता है ना वो पे करता है बाकी चीज़ों के लिए. कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं और तो फ्लाइट का टिकट्स, आपका रहने का स्टे एंड ऑल वो क्लाइंट बुक करते हैं, वो एजेंसी नहीं करती है. अच्छा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मॉडल्स कोकोआ पाउडर यूज़ करते हैं शैम्पू की जगह पे? दैट्स फॉल्स. मतलब रेगुलर शैम्पू भी यूज़ करते हो? आई यूज वन. एक पर्टिकुलर ब्रांड? हाँ, पर्टिकुलर ब्रांड. हाँ. लाइक मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मेरे को एक पर्टिकुलर शैम्पू रिकमेंड किया है और मुझे सूट कर रहा है तो आई एम यूजिंग दैट. तो आई थिंक इट्स डिपेंड्स अपॉन एवरीबॉडीज हेयर एंड व्हाट सूट्स देम. तो ऐसा कोई प्रोडक्ट पर्टिकुलर कुछ नहीं है जो हम यूज़ करते हैं. तो ये मिथ फैक्ट दोनों बोल सकते हैं. कोई यूज़ कर सकता है, कोई नहीं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देयर फेस इज एट रिस्क ऑल द टाइम. मतलब फेस रिस्क हो सकता है कि मुझे एलर्जी हुआ था अभी. लाइक यू सी इट ऑन माय फेस अ लिटिल बिट. मुझे ऐसा एलर्जी हुआ है कि मेरे को कोई मेकअप प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहे एज ऑफ नाउ. वही इसका क्वेश्चन का वही मतलब है कि हाँ अब पूरा टाइम मेकअप लगाते हो अलग अलग ब्रांड्स के. तो मेरा प्रॉब्लम हुआ है कि मेरे को मेकअप कोई भी प्रोडक्ट, इट डजंट मैटर कितना भी हाई रेटेड ब्रांड हो, कितना बड़ा ब्रांड है. लाइक डियोर यूज़ करे तो भी मेरे को ब्रेकआउट्स आ रहे हैं. तो पहले नहीं हो रहा था लेकिन अभी सडनली हो रहा है. बट देन ऐसा है बिकॉज हमारे फेस की वैल्यू है तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर फेस ऑल द टाइम. बराबर. दैट इज देयर. तो ये फैक्ट ही है कि आप फोटोग्राफर्स के लिए पोस्ट मतलब आपको फोटोग्राफर्स के लिए पोस्ट करना बहुत बड़ा पेनफुल होता है. डिपेंड यार. कभी कभी शूट्स बहुत इजी हो जाते हैं. मतलब बहुत इजी शूट है, ऐसे पता भी नहीं चलता शूट हो गया. कभी कभी ऐसे होता है कि तुम्हें एक ही पोज में बहुत टाइम खड़ा रहना पड़ता है टिल वो शॉट परफेक्ट आ जाए. तो कभी कभी हो सकता है वो में रहेगा तो और भी प्रॉब्लम. हाँ. पर ऐसा कोई इतना मुझे तो नहीं प्रॉब्लम है इतना. कोई बहुत हाई फैशन शूट रहेगा, ऐसा आड़ा टेढ़ा पोजेस करना है तो वो पेनफुल हो सकता है. हाँ. तो ये भी मिथ फैक्ट हो सकते हैं कभी कभी.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दे ऑफन डू नॉट वेयर द करेक्ट शू साइज. No, yeah, we always wear the correct shoe size. नहीं तो फिर रैम्प पे क्योंकि प्रॉब्लम हो रैम्प जाएगा. पे अगर तुम्हारा शू साइज करेक्ट नहीं है, एनीथिंग कैन हैपन. यू कैन ट्रिप, यू कैन फॉल. तो आपके साथ ऐसा कोई फनी इंसिडेंट हुआ है कि आप वॉक करते समय गिर गए और ऐसा? वन टाइम मैं बॉम्बे टाइम्स में कल्कि का शो था. कल्कि इज़ अ बिग डिज़ाइनर ब्रांड. उनका शो था और ना मेरा उन्होंने लहंगा अल्टर नहीं किया था नीचे से, अच्छा. तो मेरे लिए बहुत लॉन्ग था. हील्स पहन के भी बहुत लॉन्ग था. अच्छा. तो मैंने उनको बोला था कि आप अंदर वाला अस्तर वाला काट देना तो वो पैर में नहीं आएगा. पर आई थिंक वो भूल गए, कुछ हो गया, उन्होंने नहीं काटा. वो पूरे रैम्प में बीच बीच में आ रहा था. मैं 3 बार ट्रिप हुई, बट लकीली मैं गिरी नहीं हूँ. बट वो थोड़ा बहुत एम्बैरेसिंग हुआ था कि इतना बड़ा शो और तुम उसके बीच में ट्रिप कर रहे हो. तो आपके आजू बाजू के जो मॉडल्स रहते वो आपको संभालते हैं? हाँ, मतलब लोग थोड़ा एडजस्ट करते हैं. अगर मेरे साथ भी ऐसा कोई आगे रहेगा, कोई गिर गया, तो देन अगर मुझे दिखता है तो मेरे को थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा कि वो इंसान तब तक रिकवर करे. तो फिर शो खत्म हो जाने के बाद वो पर्टिकुलर डिज़ाइनर या डायरेक्टर वो थोड़ा ये नहीं होता कि यार ये क्या किया? नहीं, मतलब मैंने तो खुद से जाके सॉरी बोल दिया था कि वो पैर में आ रहा था, तो आई एम सो सॉरी, फिट अच्छा नहीं दिखा. तो पर ऐसा कोई इतना बोलता नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग हो भी जाता है यार. मतलब कोई जानबूझ के तो थोड़ी नहीं किया गिरेगा यार. तो इसी के साथ आज का ये पॉडकास्ट शो यहीं पे समाप्त होता है. तो अच्छा लगा आपके साथ बात कर हमें बहुत सी नॉलेज भी मिली और हमारी तरफ से एक ये छोटा सा गिफ्ट. थैंक यू. और ये हमने कैप भी प्रिंट किया है. तो दैट्स सो कूल. गाइस डू फॉलो देम. ऐसे ही हमारे शो पर आते रहना और हमें ऐसी डेफिनेटली हम बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. वी हैड अ रियली ग्रेट कन्वर्सेशन एंड आई होप people would get to know my journey and they can maybe learn through that. और जिसको भी कोई ऐसे डाउट्स होंगे कि ये इंडस्ट्री कैसी है क्या, तो वो थोड़े बहुत सॉल्व हो ही जाएंगे ये पॉडकास्ट देख. Definitely, if they want to talk about it, they can also approach me. I'm very friendly that way. I've helped a lot of girls around, like they wanted to get into modeling and all of that. So yeah.